سوچے 14 مائیں جو اپنے بچوں کا گھر انتظار کر رہی ہوتی ہیں اور باہر بیل ہوتی ہے، ماں کیسے لپکتی ہے کہ میرا بچہ آ گیا. باہر ریسکیو 112 والے لاش لے کر آئے کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کیا گزرتی ہوگی ماؤں پر، بہنوں پر، والدین پر. 1000 لوگ ڈیلی عام زندگی سے بستر پر آ جاتے ہیں زخمی ہو کر. السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں. اور جناب آج کل ایک بہت زیادہ شور شرابہ ہے، بہت زیادہ سننے کو مل رہا ہے کہ جی جناب کچھ لوگ ایسے ہیں جو رولز کو اگر وائلیٹ کریں گے تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر دی جائیں گی. مثلاً کہ ان کے لیے پیٹرول جو ہے وہ ان کو پمپ سے ملنا بند ہو جائے گا. جی ان کو مزید بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں، ہم اپنے مہمان کی جانب بغیر کسی بات کے آگے بڑھیں گے. لیکن میں حیران ہوں اپنے مہمان کی جانب دیکھ کے کہ ہمارے مہمان جو ہیں وہ آج سر آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور ہیلمٹ میں بیٹھے ہیں. کیا یہ سب کیا ہے اور اس ہیلمٹ کے پہننے کی ریزن کیا ہے اور آپ اس کے تھرو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فیصل جہان. ماشاء اللہ آپ بڑی مثبت انداز سے مختلف موضوعات کو ٹچ کر رہے ہیں. اور کل سے پنجاب حکومت کا، انتظامیہ کا، پولیس کا ایک ہی موضوع ہوگا، ہیلمٹ ہیلمٹ ہیلمٹ. انہیں اگر اپنی بیویوں کے بعد کوئی بندہ اچھا لگے گا تو وہ ہوگا جس نے ہیلمٹ پہنا ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کو اپنی بیویاں بھی اچھی لگیں گی؟ جی. اور یہ بڑا ایک سینسیٹیو موضوع ہے اور بس تھوڑا سا میں اس پر بالکل سمجھتا ہوں کہ ہیلمٹ بہت ضروری ہے ہمارے روڈ کا جو نظام ہے. لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ یارو تمہیں یہ گرمی کے موسم میں یہ کمپین یاد آتی ہے جب لوگ سر کے بال بھی اتروانے کو تیار ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے میں آپ ہیلمٹ کی کمپین شروع کر دیتے ہیں اچانک سے. تو میں اس سے اختلاف بھی نہیں کر رہا، لیکن وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے اور ہر تقاضے کا ایک وقت ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا موسم کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ عوام تھوڑا سا احتیاط کرتی ہے، کیونکہ ہیلمٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو 50+ کی سپیڈ سے ٹریولنگ کر رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں. اگر شہری حدود میں 20-30 کی سپیڈ سے چلتے ہیں تو بغیر ہیلمٹ کے گزارا کر سکتے ہیں. لیکن میں آتا ہوں اپنے اس موضوع کی طرف کہ ٹریفک نظام میں صرف ہیلمٹ کی ہی اہمیت نہیں ہے. آپ کے پنجاب کے جو آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور، انہوں نے پچھلے دنوں جناب ایک بیان دیا سرکاری، جن کا یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جی میرے صوبے میں 2 کروڑ وہیکلز ہیں، موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں، اور لائسنس جو ہے وہ 45 لاکھ کے پاس ہے. بڑا بہادر آئی جی جس نے اعتراف کر لیا. لیکن یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے انتظامیہ کے سسٹم پر، ان کی گورننس پر، کہ یار ہمارے صوبے میں 1.5 کروڑ لوگ بغیر لائسنس کی گاڑیاں چلا رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹر فیصل جہاں کہ ایک گاڑی بھی روڈ پر آ جائے بغیر لائسنس تصور بھی نہیں ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے، آپ کو ٹریفک کے ضابطوں کا پتہ ہے تو آپ روڈ پر آئیں گے، ورنہ آپ روڈ پر نہیں آئیں گے. ہمارے یہاں یہ کیا ہم سن رہے ہیں؟ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا پولیس آفیسر یہ بیان دے رہا ہے کہ جی میرے صوبے میں 1.5 کروڑ لوگ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی گاڑیاں چلا رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا ہیلمٹ دوسرے تیسرے درجے پہ آتا ہے. پہلے درجے پر آتے ہیں بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑیاں چلانے والے، کہ ایک بندہ جو اناڑی ہے، جس کو ڈرائیونگ کرنا نہیں آتی، اس کو 4 ہیلمٹ پہنا دو، اس کو ذرا بختر پہنا دو اور اس کو روڈ پر لے آؤ. وہ تو خود کو محفوظ رکھ لے گا تو باقیوں کو برباد کر دے گا وہ. تو پلیز، وہ کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، اس کی جڑوں کو آئیں، آپ اس کی جڑوں کی طرف آئیں. میں بالکل بھی مخالفت نہیں کر رہا، یہ ہونا چاہیے، لیکن جو طریقہ کار اب ہر ڈپٹی کمشنر نے، ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے عوام کو دھمکی دے دی کہ آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا. بھائی بڑا آسان طریقہ، ہر پیٹرول پمپ والے نے ایک پیٹرول انٹری گیٹ پر رکھ لینا ہے. بندہ ہیلمٹ پہن کے آئے گا، پیٹرول ڈالے گا اور دوسرے گیٹ سے اتار دے گا. ہماری قوم کو تو چور راستے بہت آتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں اب اس کے اصل پہلو کی طرف آؤں. آپ یقین جانیے گا، میں ریسکیو 112 کے اعداد و شمار دیکھ رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں چاہتا ہوں آپ کے بھی ہو جائیں.
کہ 1 जनवरी 2020 से जो 30 जून 2023 तक का डाटा उन्होंने जारी किया है, 1252-53 दिन का, 1252-53 दिन में जी इस अरसे में 12,50,994 मुकामात पर रेस्क्यू की एम्बुलेंसें गई हैं। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। और वो जब गई हैं तो वहाँ से 13,878 लाशें उठाकर लाईं जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से दुनिया से चले गए। मेरे लिए, आपके लिए वो एक खबर होगी किसी की मौत। आप उन घरों में झांकें जहाँ 2.5 साल का अरसा, क्या कितना ही अरसा वो बेचारे अपने प्यारों को रो रहे होंगे, उनकी कमी महसूस कर रहे होंगे। वो जो घर चलाते थे वो दुनिया से चले गए, औरतें बेवा हो गईं। तो ट्रैफिक निज़ाम की खराबी अपनी जगह और इसको दुरुस्तगी का अमल, आई अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पुलिस, लेकिन इसके SOPs को वाजे करें। मैं तो समझता हूँ कि कल से इन्होंने जो कहा पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा, आप ये देखिए पुलिस का एक धंधा खुल जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुतालिक हम कहते हैं वार्डन जो है वो करप्शन नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते, अल्लाह करे ऐसा हो। पुलिस वाले तो बहुत बदनाम हैं और उनमें बड़ी काली भेड़ें हैं। उनको तो कल से एक धंधा मिल जाएगा, उनको तो बड़ा आसान हदफ नजर आएगा कि यार हेलमेट नहीं पहना, ले यार पैसे दे, ये चलेगा। इसके लिए पूरी ईमान की ताकत की ज़रूरत है, पूरा एक शऊर उजागर करने की ज़रूरत है, तो तब बेहतरी आएगी। वरना लोग इसी तरह मरते रहेंगे, ज़ख्मी होते रहेंगे। एक तो ये हमारा अवाम का अलमिया है, एक हमारे सहाफ़त, अब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये कि सोसाइटी में हम लोग तौहीन समझते हैं, कानून पर अमल दरामद करना भी तौहीन समझते हैं। फॉर एग्जांपल के आपके सहाफ़ी हज़रात हैं, उनके पास आप देखें कि अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट लगाना भी वो पसंद नहीं करते, जस्ट राइट डाउन द प्रेस। अच्छा, इसी तरह पुलिस एम्प्लॉइज़ हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो तौहीन समझते हैं अपना लाइसेंस बनवाना, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना, आपने वो भी इसी तरह फेक नंबर्स या फिर विदाउट नंबर भी घूम रहे हैं, बिल्कुल ऑफिसर्स घूम रहे हैं, पुलिस वाले घूम रहे हैं। ये हमारा पूरे मुआशरे का अलमिया है। इस ऐसे मुआशरे में जहाँ हम लोग सब लोग जी रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों का माइंड सेट ये बन चुका है, इसको ठीक करने का सेहरा आपने सजाया। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा अपने बारे में बताएं कि आपने रोड सेफ्टी के हवाले से इस कैंपेन की जिम्मेदारी कैसे ली और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं, किस हैसियत से कर रहे हैं? मेरी गुजारिश ये है कि कुरान मजीद की एक आयत है कि तुम वो बात क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है हर तबके के लिए, पुलिस के लिए, ट्रैफिक के लिए, कि यार तुम खुद तो बात करते हो तो पहले खुद अमल करो, तुम्हें एक मिसाल बनना होगा। कल से अगर शहरियों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा तो पुलिस वालों को भी नहीं मिलना चाहिए। कल से पुलिस वाले भी बगैर हेलमेट के नज़र आए तो उनका भी चालान होना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मैं तो डॉक्टर साहब यकीन जानिए, मैं कोई अब नहीं, आप मेरा सोशल मीडिया पे मेरा पीछा कर लें, मुझे देख लें, मैं काफ़ी अरसे से सिंस 20 ईयर्स मैं ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करता हूँ। उनके लिए मैं ये एक मिशन जान के मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तबलीग है, इंसानी जानों की भलाई की बात होती है। सूरत अल-माइदा में जो फरमाया कि भाई जिसने एक इंसानी जान को बचाया तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, तो मैंने पल्ले से बांध ली। फिर मेरे 2-3 दोस्त ऐसे थे जिनको मैं बड़े करीब से जानता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियरिंग की तालीम दी। 3 मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके बच्चे इंजीनियर बने, उनके ख्वाब बिखर गए। एक ट्रैफिक हादसे में वो बच्चे दुनिया से चले गए, उनकी तालीम, उनकी सब कुछ रह गया। वो वाक़यात ने मेरा दिल बड़ा रंजीदा कर दिया। तो मैंने कहा यार मेरी दुआ है आइंदा किसी माँ का लाल जो है वो रोड एक्सीडेंट का शिकार ना हो। लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं जब रेस्क्यू के अदाद शुमार पढ़ता हूँ तो 14 लोगों की एवरेज डेली डेथ है डॉक्टर साहब, 14 लोग। आप सोचे 14 माएँ जो अपने बच्चों का घर इंतज़ार कर रही होती हैं और बाहर बैल होती है, माँ कैसे लपकती है कि मेरा बच्चा आ गया। और बाहर रेस्क्यू 11122 वाले लाश लेकर आए खड़े होते हैं। आप देखिए क्या गुजरती होगी माओं पर, बहनों पर, वालिदैन पर, कैसे उनके ख्वाब बिखर जाते हैं, क्या हो जाता है। आप सिर्फ ये तसव्वुर कर लें। मेरा ईमान है हमारी कौम बहुत अच्छी है, चीज़ों को समझने वाली है। वो सिर्फ इस चीज़ को समझ लें कि यार हमारे पंजाब में 1000 लोग डेली आम जिंदगी से बिस्तर पर आ जाते हैं जख्मी होकर। किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी का लेग फ्रैक्चर हो गया, किसी की हेड इंजरी हो गई।
यार वो 6-6 महीने के लिए बिस्तरे पे पड़ जाते हैं, पूरा घर, ये जो हम रोते हैं महंगाई है जी, मुआशी मुश्किलात हैं, आप उस घर का तस्वुर करें जो सेहत दी बादशाही मांग रहे होते हैं कि आला मैंने क्या हो गया। वो मोहसिन नकवी का एक शेर है कि एक हादसे से गिर गए मोहसिन जमीन पर, एक हादसे से गिर गए मोहसिन जमीन पर, हम रश के आसमान थे अभी कल की बात है। तो कितने लोग बिस्तरों पर मोहसिन का ये शेर गुनगुनाते होंगे, सुनते होंगे कि यार मैं तो रश के आसमान था, यार मैं तो अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए खिदमत करना चाहता था, मैं मूवमेंट करता था, मैं इधर से उधर आता था, यार अब मैं बिस्तर पे पड़ गया हूँ, यार अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, यार अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन पे क्या गुजरती है। तो बस हम यही समझ लें और हम ये मत देखें कौन क्या कर रहा है, हमने खुद को महफूज रखना है। हम हेलमेट इसलिए ना पहने, हम लाइसेंस इसलिए ना बनवाएं कि यार पुलिस कह रही है, नहीं यार मैंने अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, मैंने अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट पहनना है, मैंने अपनी हिफाजत के लिए मिरर लगाने हैं। आप देखें मोटरसाइकिलों पर 95% मोटरसाइकिलों पर मिरर ही नहीं है, हेलमेट के साथ वो जुड़ा हुआ है, जैसे तालीम के साथ तरबियत है, हेलमेट के साथ मिरर है। डॉक्टर साहब अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है और आप सीधा जा रहे हैं तो आपको क्या पता इर्द गिर्द क्या हो रहा है जब तक आपके मिरर नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हम ये ना देखें कि हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस मौसम में कर रही है। हमें अपनी हिफाजत के लिए ये इक़दाम ज़रूरी करने चाहिए। हमें रोड एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमें पूरी दुनिया की फ़िक्र नहीं करनी, हमें सिर्फ अपनी फ़िक्र करनी है। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जब हम लंच टेबल पर बैठते हैं, तो बच्चों के साथ डिस्कस करें, बेटा मोटरसाइकिल तुम्हारी कैसी है, उसके मिरर हैं, ब्रेक है, बेटा तुम लोग तेज़ तो नहीं चलाते। इन बातों से एक थोड़ी सी बेहतरी आएगी। वरना आप देखें हम 14 लाशें डेली उठाते रहेंगे, हम 1000 लोग बिस्तरों पे आते रहेंगे। आपका जो हॉस्पिटल्स पर, पैरामेडिक्स पर, डॉक्टर्स पर, रेस्क्यू पर सबसे ज़्यादा बोझ इस वक्त रोड एक्सीडेंट्स का है। तो ये मुल्क की मईशत तबाह हो रही है ना। और डॉक्टर साहब आपको बताऊं, एशिया में ये जिस कौम ने एशियन टाइगर बनना था, ये जो हमें एशियन टाइगर बनने के ख्वाब दिखाए गए, आपको पता है डॉक्टर साहब हम नौजवानों की रोड एक्सीडेंट्स में हलाकत के हवाले से एशिया में नंबर 1 आ गए हैं। खुदा ना खास्ता हम दुनिया में नंबर 1 ना आ जाएं। तो यारो जागो यारो, मोटरसाइकिल पर सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट होते हैं। 85% मोटरसाइकिल और 5% रिक्शों के एक्सीडेंट होते हैं। अब देखें बहुत से बेरोज़गार बेचारे जो तालीमी मैदान में पीछे रह गए, जिनको रोज़गार का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वो रिक्शा चलाना शुरू हो जाते हैं। आपको देखें 90% रिक्शों के ना इंडिकेटर नज़र आएंगे, ना लाइटें नज़र आएंगी, ना उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होंगे। तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए। ये नहीं कि गुर्बत के नाम पर वो सड़कों को तहस नहस कर दे, निज़ाम को बर्बाद कर दे। तो खुदारा अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, तो फिर ही बेहतरी होगी। जी नाज़रीन, इसमें हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं नासिर महमूद शेख साहब, और सोशल वर्क में इनका एक नाम है। यकीनी तौर पर इस वक्त इस रोड सेफ्टी के हवाले से कैंपेन चला रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मेरी ज़ाती राय में भी इस वक्त मौजूदा जो ये कैंपेन चल रही है, इस कैंपेन के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। निगरान हुकूमत की इसके बारे में क्या मैंडेट रखती है, क्या उसको ये हक हासिल है कि अपने शॉर्ट टाइम में इलेक्शन मुनक्किद करवाने की बजाय वो इन कामों पर तवज्जो दे। और इसी तरह ये जो हेलमेट माफिया है ये इस वक्त सरगर्म हो गया है, इसको ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर हुकूमत पहले, इससे पहले जब वो इस चीज़ की पाबंदी लगा रही आई थी, पंजाब साहब आप, वज़ीर आला पंजाब साहब आप लोग जब पाबंदी लगाते हैं तो आपको उससे पहले मार्केट में इस हेलमेट की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाना आपका फ़र्ज़ है। इसको यकीनी बनाने के साथ साथ इसकी कीमतों पर कंट्रोल करना, इसकी क्वालिटी पर एनहांस करना, ये तमाम चीज़ें आपके ज़िम्मा है। लेकिन आप इस ज़िम्मेदारी को निभाए बगैर जब इसको काम करेंगे तो सवालिया निशान आप पर उठेंगे, करप्शन के मुतालिक भी सवालात आप पर उठेंगे और तमाम बातें आपके मुतालिक की जाएंगी कि आप इसमें कहीं किसी भी जगह पे इन्वॉल्व ना हो। लेकिन इन तमाम बातों से कता नज़र यकीनी तौर पर, जैसे शेख साहब ने आपको ये पैगाम दिया, 100% हार्ट टचिंग है कि आपको हुकूमतों की तरफ नहीं, किसी कैंपेन की तरफ नहीं, किसी और मामले की तरफ देखने की बजाय इस बात पर गौर करना है कि हमें अपने बच्चों की, अपने नौजवानों की ज़िंदगियों को महफूज बनाना है। इसलिए इस कैंपेन को कामयाब बनाना है ताकि तमाम लोग जो हैं वो महफूज रह सकें, बच्चे अपनी माँओं के पास पहुँच सकें, बजाय इसके कि आपके दरवाजे पर 1122 की दस्तक हो। इससे बहुत बेहतर है कि आपका अपना बच्चा सेहत और ज़िंदगी के साथ आपके दरवाजे पर वापस पहुँचे। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहाँ को आज से प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।